Good morning, students. Today we are going to start chapter polynomial. Chapter number is 2 and it is of class 10th. Okay. So first of all, what is polynomial? It is an algebraic expression. Algebraic expression. And is consistent of coefficients, constant, variable terms, and some mathematical operations. What are these? Plus, minus, multiply and divide. Okay. Now, there is one condition that variable is always having whole number as a power. Whole number as a power. Like this is 2x square. This is a polynomial and here this is variable and this variable has some power. This power is always a whole number, means it can be 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, it will always be a whole number. It can never be in root or in division or rational number. Okay, like if we do like this, then this is wrong. This is not a polynomial. Okay. So general form of writing it is a2x2 a3x3 anxn. Okay. Now types of polynomial. There are many types of polynomial. First is linear polynomial. To understand this, first of all, we have to deal with a term, that is degree. What is degree? It is the highest power of the polynomial. Highest power of polynomial. Okay. Highest power. Power ये होती है, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है. This is power. Okay. So what is linear polynomial? Polynomial, I am writing it like this. Polynomial which have 1 degree as power. 1 degree is there. Okay. And also 1 0 is there. 0 क्या होता है? zeros. zeros होती हैं पोलिनोमियल की, zeros होती हैं. वो कैसे डिपेंड करती हैं? जैसे सपोज ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है. अब इसकी डिग्री कितनी है? देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये जो 2 है ये हाईएस्ट पावर है. दिस इज द डिग्री. जितनी जो डिग्री होती है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसकी कितनी जीरोज होंगी. अब इसमें 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट मतलब डिग्री 2 है, तो इसकी 2 जीरोज होंगी. ऐसे ही लीनियर पोलिनोमियल में कैसे होता है? ये तो इस एग्जाम्पल को छोड़ो. 2x, व्हाट इज दिस? दिस इज लीनियर पोलिनोमियल. हियर x हैज 1 पावर and the condition is linear polynomial which is having 1 degree. So it have 1 degree. So this is linear polynomial. This is the example of linear polynomial. Okay. Now second one is quadratic polynomial. What is quadratic polynomial? Polynomial, I am writing it like this, which has 2 as degree. This is the example of quadratic polynomial. Okay, it always have degree 2. One more example is suppose 4x plus 1. This is also quadratic polynomial as this also have the highest power as 2. Okay, next one is cubic polynomial. What is cubic polynomial?
This is the polynomial which has, from cube we can understand that it has 3 as degree or 3 as highest power. Example is 4x cube plus 2x square plus 1x plus 5. This is the example of cubic polynomial. Okay, now next is biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial, what is this? This is the polynomial which has 4 as degree. Okay, this is very simple. Here like 5x4. This is also a biquadratic polynomial. No need of these. They can also be there. These can exist and cannot be exist. It does not matter that if they will be not there means these 2x square plus 1x here, so it will not be a biquadratic polynomial. If the degree is 4, then it is biquadratic polynomial. Another example is 4x4 plus 3x 3 plus 2x square plus x plus 1. This is also a biquadratic polynomial. And the basic how to write linear polynomial is ax plus b, like 2x plus 1, 5x plus 5. This is linear polynomial. How to write it? Ax plus b. This is its general form. Okay, similarly quadratic polynomial general form is ax square plus bx plus c. Okay, similarly cubic polynomial is written as ax cube plus bx square plus cx plus t. And biquadratic polynomial ax4 bx cube cx square dx plus e. Okay, now what are zeros? मैंने यहाँ पे कहा था कि zeros 2 होती हैं. What is zero? So we will clear this term. This is a constant term. This is a constant term. Satisfy the polynomial. Which always satisfy the polynomial. Okay. एक टर्म होती है फैक्टर, वो भी जो है इसको सेटिस्फाई करता है पोलिनोमियल को. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड फैक्टर? जो फैक्टर है वो वेरिएबल टर्म में भी हो सकता है. इट कैन एग्जिस्ट इन वेरिएबल फॉर्म. ओके, मतलब इसके पास वेरिएबल भी हो सकता है. सपोज 12x है, ठीक है. इसकी जीरोस तो -12 है इसकी. ओके, फैक्टर इसका 3x भी हो सकता है. ओके, 3x कैसे हो सकता है? क्योंकि 3x भी इसको सेटिस्फाई करती है, डिविजिबल होता है इससे, ठीक है. और -12 इसकी क्या है? जीरोस है. ये हमेशा कांस्टेंट टर्म होती है और ये वेरिएबल टर्म, ये वेरिएबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ये इसका फैक्टर भी है, ठीक है. अब आगे देखते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन सा होता है. कांस्टेंट polynomial. What is that? It is a polynomial in which degree of variable is always 0. डिग्री जो है वेरिएबल की ऑलवेज 0 होती है. देखो वेरिएबल क्या होता है? ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं. जो इसमें वेरिएबल है, सपोज एक्स लेते हैं हम, इसकी जो पावर होती है, डिग्री होती है, वो 0 होती है. इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पोलिनोमियल. जैसे कि एग्जांपल है 2 x 0 के साथ अगर, तो फिर भी ये कांस्टेंट पोलिनोमियल कांस्टेंट ही रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि इसका जो वेरिएबल के अगर डिग्री 0 हो तो हम उसको 1 लिखते हैं. जैसे y0 इज ऑल्सो 1. ओके, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है. ओके, now next term is zero polynomial. What is zero polynomial? Constant polynomial in which coefficient term is 0.
ये ऐसा कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है in which कोफिशिएंट टर्म इज 0। अब आप खुद देखो, 0 होना चाहिए कांस्टेंट, और जो वेरिएबल हो वो कोई भी हो सकता है, x1 x पावर 2, यहाँ पे कितनी भी पावर ले लो आप, इसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आंसर देगा। ये होता है 0 पोलिनोमियल। ओके, नाउ some concept which are related to the chapter। सपोज देखो ऐसे लिखते हैं हम, कोई भी पोलिनोमियल होता है। ये कौन सा पोलिनोमियल है? मैंने आपको बताया था जिसमें डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, सो अब इसकी सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे हम? मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है वो ही उतनी ही जीरोस होती हैं इसकी। जैसे अब इसकी 2 है तो इसकी कितनी जीरोस होंगी? 2। मान लो AX3 होता तो फिर उसकी कितनी जीरोस होती? 3। अगर हाईएस्ट पावर 4 हो तो 4 होती हैं। ऐसे ही सम ऑफ जीरोस। अब हम इसकी जीरोस मान लेते हैं। इसके लिए एक जीरो तो है अल्फा और एक है बीटा। दीज आर सिंबल्स विच वी विल यूज। ओके, अल्फा हेयर दे डू नॉट हैव एनी वैल्यू, मतलब वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर एक नोटेशन है, अल्फा और बीटा। अब सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। एंड सेकंड, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सम ऑफ जीरोस? दैट इज माइनस बी ओवर में ए। व्हाट इज बी? सी हियर, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। दिस इज कोफिशिएंट। ओके, एंड व्हाट इज ए? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। Okay, we can find the sum of zeros like this also. Similarly, we can find product of zeros also. जनरल फॉर्म में तो हम ऐसे निकालते हैं, अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इसका फॉर्मूला है वो है c अपॉन a। व्हाट इज c हियर? दिस इज कांस्टेंट। एंड व्हाट इज a? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दीज आर द फॉर्मूला विच वी विल यूज टू do the questions in the exercises. Okay, now a situation is there. If you are given sum of zero, कोई भी एक पोलिनोमियल है, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो और आपको बोल रहे हैं कि हमें पोलिनोमियल बताओ कि पोलिनोमियल क्या होगा, तो व्हाट विल बी द पोलिनोमियल? देयर इज ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट, kx square minus sx plus p. What is s? This is sum of zeros. And what is p? This is product of zeros. Suppose I am giving you an example. You are given sum of zeros 5. Okay, and product of zeros मान लो आपको दे रखा है 6 और आपको बोलते हैं फाइंड द पोलिनोमियल। सो व्हाट विल बी द पोलिनोमियल? इट विल बी दिस k इज हेयर कांस्टेंट। ओके, जनरली जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम इस k को नहीं लेते हैं, हम नॉर्मली ऐसे लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर तो आ गया, आगे माइनस। अब s की वैल्यू देखो क्या है, 5 है, तो हम 5 पुट करते हैं। x यूं की यूं आ जाएगा, प्लस p की वैल्यू है 6। अब मान लो मैं सम ऑफ जीरोस लेती हूँ -5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी -6, तो फिर क्या आता आंसर? माइनस, जो फॉर्मूले में है वो का वो माइनस, सम ऑफ जीरोस -5 प्लस, अब ये है -6, तो क्या होता पोलिनोमियल? kx स्क्वायर। ये माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाता है 5x और ये नेगेटिव। ओके, होप सब तो आपको समझ आएगा। अब सिमिलरली हम डील करेंगे ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, व्हाट इज दिस, क्यूबिक पोलिनोमियल के साथ। ओके, हाउ वी विल फाइंड सम ऑफ जीरोस। अब देखो इसकी कितनी जीरोस होंगी? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो कितनी जीरोस होंगी? 3। अब मान लो हम उन जीरोस को मानते हैं, एक अल्फा, दूसरी बीटा और तीसरी गामा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे होता है ये। ठीक है,
अल्फा बीटा गामा. ओके, सो हाउ वी विल फाइंड सम ऑफ जीरोस. नॉर्मली तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है. और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए. व्हाट इज बी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड व्हाट इज ए? कोफिशिएंट है, ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब. अच्छा, व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट होता है जो भी वेरिएबल के साथ हो. सपोज देखो इसमें ए है तो इसका एक्स का क्या कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का क्या कोफिशिएंट है, ए. एक्स स्क्वायर का क्या है, बी. एक्स का क्या है, सी. और इसकी तो जो देखो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये. हाउ इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? जहाँ जो यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, उसकी पावर 0 है, तो हमने वो लिखी नहीं क्योंकि वो इक्वल टू 1 होती है. और d इंटू 1 इज इक्वल टू टी. ओके, सम ऑफ जीरो को फाइंड आउट करने का. और अब दूसरा फॉर्मूला देखो, अब इसमें ऐसे भी तो हो सकता है. एक तो हम सम ऑफ जीरोस करेंगे, एक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे? जैसे अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा गामा को कर दिया, गामा अल्फा को कर दिया, और अब इन तीनों को प्लस कर दिया. सो हाउ वी विल फाइंड देम? इसका भी क्या फॉर्मूला है, सी ओवर ए. सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इसको हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? दैट इज, नॉर्मली तो हम ऐसे करेंगे, और फॉर्मूला है माइनस डी ओवर ए. सी हियर, व्हाट इज डी? डी इज द कांस्टेंट एंड व्हाट इज ए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. वी विल पुट देम. व्हाट इज डी? ये तो कांस्टेंट है और माइनस है तो बाहर माइनस लगा देंगे. व्हाट इज ए? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, in this way we can find out the product of zeros, sum of product of zeros and sum of zeros. Last topic is division algorithm. What is this? ये नॉर्मली वही चीज़ है जो आप करते हो. अब ये है 52, ये है 2 और ये हमने सोल्व किया, ये हो गया सोल्व. ठीक है, जो यहाँ पे इसमें रिमाइंडर 0 है, इसको क्रॉस भी डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं. तो डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, नहीं ये प्लस नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है, प्लस में रिमाइंडर आर ऑफ एक्स. ओके, ये क्या है, डिविडेंड. ये क्या है, क्वोशिएंट. ये है डिवाइजर और ये है रिमाइंडर. क्या होते हैं ये? अब देखो इसके हम 50 से बताए. व्हाट इज दिस? दिस इज डिविडेंड, ये आपको पता ही है. और 2 क्या है, डिवाइजर. पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन है 26, 2 प्लस 0. इन दिस वे वी कैन राइट दिस. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ राइटिंग और दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, होप सो आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट समझ में आए होंगे. विद दिस होप आई एम एंडिंग दिस वीडियो. आई विल मेक अ वीडियो ऑन exercises. Please see them also. You will clear your concepts and doubts from there also. Okay? Thank you and have a nice day.